information, only the strategic information. And another is what we are now, our objective is to see that more and more public authorities publish the information on their website itself. In some of the info, for example, Brihat Bangalore Mahanagara is concerned here, we have seen that all the building plans are being published in the information, I mean, in their website. The first thing is. Second is, all work orders, all agreements entered into with the contractors are now being published in the website of the Brihat Bangalore Nagarpalika, so that 90% of the RT applications have come down, and the people are accessing the these websites and getting the more and more information from the website itself. So likewise, even in the Panchayat Raj department, that is Gram Panchayats, their website, they have got two websites. One is Pancharatna and Panchatantra. There our objective, we have seen that most of their information are now available on the website. So this is how we have been educating our applicants to use the website properly. If any information is which are not available in the website, they are only making the application to the concerned departments and getting it. So we have, so that now we are published subject-wise books on RTA here, how to get the information on public, what constitutes personal information, what is the information getting from the Panchayat Raj, how to get information relating to the works and all. So we are trying to simplify the issues supported by the decided cases. This is how now we have trained most of the publication first appellate authorities and see that less and less appeals reach the Information Commission. This is a strategy now we have adopted here. Mr. Viresh, you can share some of the major cases which has benefited public at large, like, you know, the information and all. That is one is that is audit reports of the Brihat Bangalore Mahanagarapalika. They have got about 600 officers. The officers are being audited by the state audit department and publish their audit reports. So now we are in hand, all the audit reports of about 10 years audit reports we are on hand. We are making application and seeking the compliance reports of the of such audit reports here. Wherever compliance reports are not being submitted, recoveries are not being made, we have taken some of the cases before the Lokayukta. Even some of the cases we have taken to the Anti-Corruption Bureau. Now, Lokayukta is virtually monitoring the recovery portion of the Brihat Bangalore Mahanagarapalika. Now, due to the intervention of the Karnataka Lokayukta, finally BBMP has agreed that there is an arrears, that is a recovery of about 2,200 crores from 95-96 to till date here. Because of the intervention, RTA applications and intervention of Lokayukta, the BBMP is in the process of that collection of the 2,200 crores as arrears. This is now, and due to these applications, now a policy has been made in the Brihat Bangalore Mahanagarapalika that whenever an employee retires from the service, unless he has made compliance and made recoveries, no, the pension will not be settled. Terminal benefits will not be paid. So now there is a angle of some accountability has come in the department, so that the more interest is being on the recovery portion and compliance report of the audit reports. This is how we are trying to bring some financial discipline in the whole Brihat Bangalore Mahanagarapalika. So, Mr. Viresh, like, I mean, the first step you took that you filed RTI seeking audit reports of the BBMP. Corporation. Sir, above that, one chief audit officer is there. He inspects this office. We make the application to him and get the audit reports in CD format, sir. That is electronic format. Okay. So we have identified some volunteers, RTA activists. We send it to them. They file the application. Standard formats are there. They file the application to the concerned officers and seek the recovery details as well as the compliance details. This is how a strategy has been developed. तो यहाँ पे जितने लोग जो आरटीआई एक्टिविस्ट मौजूद हैं दूसरे स्टेट से भी, वो लोग भी चाहें तो जैसे मिस्टर विरेश वहाँ काम कर रहे हैं बैंगलोर, आप लोग अपनी अपनी जगह जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी ऑडिट रिपोर्ट आप ले सकते हैं। और ऑडिट रिपोर्ट लेने से फायदा ये होगा कि देखिए जैसे भास्कर प्रभु जी बता रहे थे कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उसमें ऑडिट कर दिया है, अब उसमें तो सारी चीजें आ गई हैं, किसने क्या गड़बड़ की है, किसने क्या ठीक किया है,
तो सब्सिक्वेंटली आप उसमें एक्शन लेना बहुत ईजी हो जाता है, जैसे भास्कर गुरु जी कह रहे हैं। तो आप एक बार ऑडिट रिपोर्ट आपके हाथ में आ गई, आप उसको फॉलो अप करके, जैसे मिस्टर वीरेश ने बताया कि आप उसमें लोकायुक्त और जो ईओडब्ल्यू एजेंसीज हैं उन सबको आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज, ये है इसमें केस ये करिए, और बाकी सारे इश्यूज के लिए आप फर्दर दूसरे ऑफिसर्स को भी आप उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और फिर कंप्लेंट करना करने है के बाद करना। आप यही लगाइए कि आपने जो जो कंप्लेंट की है, चाहे वो लोकायुक्त की है, चाहे ईओडब्ल्यू को की है, चाहे उसके ऑफिसर्स को उसके सामने की है, उसमें क्या कार्रवाई की गई है, वो सब आप आरटीआई में मांग सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। मुझे लगता है कि बाकी सब जगह भी इस तरह से इसको चेक करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तो ये सिस्टम थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि होता क्या है कि ऑफिसर्स का मैंने एक एटीट्यूड देखा है, उनका कहना है कि ठीक है ऑडिट में आ गया ऑडिट में आ गया तो कौन सी बड़ी बात है, आती बनती रहती है, ऑडिट रिपोर्ट मांगते रहते हैं, ऑडिट करते रहते हैं। वो एटीट्यूड हो गया बिकॉज एक्शन नहीं होता है उसमें। सपोज गाड़ी का लॉगबुक है, गाड़ी का लॉगबुक कई लोग नहीं देते हैं, बड़े अधिकारी नहीं देते हैं। अब नहीं आती है तो ऑडिट में ऑब्जेक्शन आता है। अब 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कोई नहीं दे रहा है, लेकिन ऑब्जेक्शन ही आता रहता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मेरा कहना है कि कार्रवाई तब होगी जब आप उसमें उसको आगे ले जाएंगे कि देखिए ये ऑडिट रिपोर्ट में ऑब्जेक्शन आया है, ये इन्होंने लॉगबुक जमा नहीं की है, लॉस टू एक्सचेकर है, ये पूरा जो इतना खर्चा हुआ है गाड़ी का इनकी सैलरी में से रिकवर किया जाए। ये सब निजी यात्रा ही है, क्योंकि इन्होंने खुद ही साइन करके नहीं किया है। तो ये सब तमाम इशू बन सकते हैं और उसको उस ढंग से उसको फॉलो करना चाहिए। थैंक्स मिस्टर वीरेश फॉर शेयरिंग। थैंक यू। राहुल साहब, मेरा एक क्वेश्चन था कि प्राइवेट विश्वविद्यालय आरटीआई के दायरे में आ सकते हैं क्या? प्राइवेट विश्वविद्यालय? हाँ सर। प्राइवेट विश्वविद्यालय आरटीआई के दायरे में आते हैं, कुछ पार्ट आता है उसका। देखिए अगर यूनिवर्सिटी बन जाती है, एक तो आप इस बात को भी देखिए सुरेंद्र जैन जी, कई मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, हाँ, उसमें तो वो पब्लिक अथॉरिटी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड मिलता है, कई स्कीम्स होती हैं, स्कॉलरशिप्स होते हैं, सब चीज़ें रहती हैं, और वो फंड मिलता है, और इसीलिए उनको कहा भी जाता है, जो इनका यूनिवर्सिटी का रेगुलेटरी कमीशन है, वो उनको कहते हैं कि आप अपने आप पीआईओ अपॉइंट करिए, पर सेपरेट ऑफिसर्स अपॉइंट करिए, और आरटीआई का मैकेनिज्म अपना ठीक करिए, दुरुस्त करिए। और ऐसे हमारे सामने कई केसेस आए हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी, जहाँ से इंफॉर्मेशन मांगी गई है। और दूसरी बात है, अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज की कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है, जो वो अपनी रेगुलेटरी जो कमीशन हो गया या फिर रेगुलेटरी जो भी संस्था जो उसको देखती है उच्च शिक्षा विभाग में, उस वहाँ उनको मान्यता संबंधित कुछ उनको देना पड़ता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप किसी भी एक 3 टपड़े में 1 रूम के कमरे में आप कॉलेज खोल लें, जो फ्रॉड होता है, हर जगह ऐसा हमने फ्रॉड देखा है। तो इसीलिए एक मैंडेटरी उसमें रूल्स के तहत ही मान्यता दी जाती है। अगर आप उसको फुलफिल करते हैं वो सारी ऑब्लिगेशन, और वो उनके पास अपना स्टाफ होता है, बिल्डिंग होती है, एरिया होती है, तो ही वो कॉलेज चला सकते हैं। तो वो आप वैसी जानकारी जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होती है, वो आप गवर्नमेंट से प्राप्त कर सकते हैं। सर मेरा ये था कि मेडिकल कॉलेजेस जो है, जहाँ पर नेट के द्वारा या सिलेक्शन होके बच्चे जाते हैं, उनकी फीस सिलेक्शन होके नेट डेस्क पे जाके वो क्या करते हैं सर कि जो डॉक्टर्स की होती है, डॉक्टर्स जो होते हैं डॉक्टर्स होते ही नहीं है, और नाम लिख के उनका काम निकाल लेते हैं। ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस में चल रहा है। हाँ, तो मेरा कहना है कि देखिए जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, अगर उसमें ये भी देखना है कि उन्होंने अगर गवर्नमेंट से बहुत सारी चीज़ें होती, चाहे वो कोई सा भी कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, आर्ट्स कॉमर्स का भी कॉलेज हो, लेकिन आप वो ज़मीन कहाँ से मिली है, ज़मीन क्या सरकार ने सब्सिडाइज रेट पे दी है उनको, तो ये सब तमाम चीज़ें देखनी होती है। क्या कोई फंड मिल रहा है गवर्नमेंट से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी देखना होता है। तो अगर कुछ ऐसा कुछ गवर्नमेंट से प्राप्त हो रहा होता है, या फिर गवर्नमेंट से उनको ज़मीन मिली होती है, तो उसमें फिर वो लोग उस कैटेगरी में आ जाते हैं, उनके ऊपर आरटीआई लागू होती है। फंड वगैरह या जमीन नहीं मिलती है, रजिस्ट्रेशन होता है तो ही मिलेगी सर? नहीं, रजिस्ट्रेशन देखिए क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन अगर आपको वो आप बात को समझिए, एक ट्रस्ट है जो एजुकेशन ट्रस्ट है, उसको रजिस्ट्रेशन के तो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो मार्केट रेट पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसमें क्या गलत है। लेकिन अगर वो ट्रस्ट जो है उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा है,
गवर्नमेंट की ओर से कई बार उनको छूट दी जाती है कि कई बार सरकार उनको आवंटित करती है कि भाई ये यहाँ पर इनको इसके लाख रुपए के हिसाब से या 1000 रुपए के हिसाब से इनको ये जमीन यहाँ आवंटित की जाती है। हाँ वो इसमें सब्सिडाइज रेट पर करने पर उनके ऊपर आरटीआई लागू। हाँ वो मालूम है सर, और मेरा यही निवेदन था कि उसके अलावा मतलब वो उनको सब्सिडाइज जमीन भी नहीं मिली है और इस तरह से नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन ही किया हुआ है, तो क्या वो आएगी के दायरे में? नहीं आएगी, नहीं आएगी। हाँ ठीक है, ओके सर, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा सर, वन क्वेश्चन फ्रॉम माय Yes, I am from Uttar Pradesh. If a medical college is affiliated to a government university and they are providing their data sheet of teachers when they joined, on which post and when retired, so that will be supplied in the RTI or not? If asked, yeah, they'll be supplied. Yes, of course. Whatever is being provided to the government authorities for their affiliation and for the purpose of notification that they are the medical college staff. And yes. That has to because I am experiencing many medical colleges, they are at the time of, they are not giving the living certificate to the doctors, they are taking their money. So if through RTI they can get, I think, the information that from which to which date the particular person was affiliated, was working in your college, so that they should provide, I think. Yes, they see, the thing is that it is very clear, anything which is affiliated to the government, that part yes. of the information will be available. Now there are various points of debates here where how much is to be provided. Now that will be only, that portion will be provided whatever the affiliation is with the government. Now the other point is that about this other point is about the substantial funding. Now substantial funding is a very very gray area to debate, you know. I would differ a little. Just land also cannot be a substantial funding. If land is of 1 rupee and if the substantial funding is around 100 rupees from the investor, then that may not be considered. So it will go on debating and competent authority will take its own time. Now the idea here is that I said because I am using today the word satyagraha a lot, because this is RTI is one type of a satyagraha. We have to go on trying our level best to pursue the public authority, to pursue the private organizations also, to be accountable to the public. And we are going out from that type of a regime to other way of regime, is that private is much more given importance than the public importance. So I feel that we also have to go on trying it. We have to see that all public necessity, even our culture says that our three types of sevas are free in Indian traditional system. One is that water is free, food is considered as seva, and medical treatment is considered as seva. So we have to see that we achieve this in a continuous pressure the public authority to have it. That's only I can say. Thank you. सर मैं कुछ कहना चाहूंगा शिवानंद सर, आवाज आ रही था? हाँ भाई पूछिए। सर मैं जानकारी मांगा था, 8 बिंदु में जानकारी मांगा था कुछ पंचायत के उधर से जी। गोरा कागज मिला था सर, और वो समझौता के लिए बोल रहे थे। मेरे घर में बहुत दबाव आया था और पापा मुझे समझौता करवा दिए हैं। तो सर मेरे मन में समझौता नहीं है, पूरा समझौता भी नहीं हुआ है। तो सर हमको ये घर से दबाव आया है पापा की तरफ से। तो पापा को समझाइए गांधी जी की सत्याग्रह क्या थी, तो मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि नहीं तो पापा को इस मीटिंग में लेके आओ, हम लोग समझा देंगे। अभी क्या है, पापा और बेटे के बीच में तो हम नहीं गिर सकते हैं साहब। ये बहुत ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन होगी, ये प्राइवेट ये सेक्शन ये चीज सेक्शन 81J में आ जाएगा, तो हम प्राइवेटली बात करें। चलो अगले मीटिंग में सर हम मिलवाएंगे। शिवानंद सर
नहीं आप ये पर्सनल बात है शिवानंद जी के ऊपर है, लेकिन मैं कहता हूं कि पर्सनल चीजों को ऐसे पब्लिक इसमें नहीं ले आइए और पापा को अपने सूचना अधिकार एक बार पढ़ के बताइए और समझाइए कि ये तो गांधी जी की हम चाल पे चलने के लिए तैयारी ली है, तो आपको भी सॉल्ट सत्याग्रह अपने घर से चालू करनी पड़ेगी। सर मेरा भी MP या DC में जानकारी मांगा था सर, तो वो खुद ही मेरा ही जानकारी मांगा है, तो मैं देने के लिए तैयार था। वकील से पूछा नहीं, तो लेकिन हर एक चीज आप वकील के पास जाना नहीं चाहिए। मैं आपको कहता हूं आप पहले सूचना अधिकार एक बार पढ़ लीजिएगा और तब आप आगे बढ़ पाएंगे सही ढंग से। और सूचना अधिकार के लिए वगैरह जी नहीं आप आगे बढ़े हैं, तो जब आप तक सूचना अधिकार पढ़ेंगे नहीं, कितना भी आगे बढ़िए कोई मतलब नहीं रहेगा। आप पहले सूचना अधिकार पढ़िए, अपने पापा को समझाइए, उसके बाद में आगे बढ़िए। जी हमको पापा से थोड़ा डर लगता है कि कहीं हमको अलग न कर दें। अरे बाप इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ना। देखिए हाँ, गांधी जी ने भास्कर प्रभु सर ने आपको बताया है और वही सभी का जवाब है। देखिए RTI आप लगाते हैं तो स्वयं किसी परिवार के दबाव में ना आए, सामने वाला पक्ष आपको दबाव देने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन आपको दबाव में नहीं आना है। जी सर। यदि आप दबाव में आ जाते हैं तो फिर उसके लिए कोई समाधान नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि तो उसमें अपन कुछ नहीं कर पाएंगे और उसमें आप अपना समाधान निकालिए। और यदि कोई समस्या हो अपील में तो आप इसके बाद आप जानकारी नहीं मिल रही है तो प्रथम अपील करिए, फिर प्रथम अपील पे जानकारी नहीं मिल रही है तो आप द्वितीय अपील करिए, और फिर जब आयोग के पास बात जाएगी तो वहां पे आपको जानकारी मिलेगी और संबंधित जो भी व्यक्ति है जो जानकारी छुपाने का प्रयास कर रहा है गलत ढंग से, उसके ऊपर जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्यवाही भी होती है। तो हमेशा नियम कायदे का पालन करिए और इस तरह से बातों पे मत आइए कोई यदि आपके ऊपर दबाव लगाता है या जी सर, मैं अगली बार अपनी मीटिंग में पापा से बात कराऊंगा सर। हाँ ठीक है, आप लाइए। पापा ने घर से बाहर निकाल दिया तो वहां शिवानंद जी से एक मेरा निवेदन है। हेलो, हाँ एक मिनट, राजकुमार कौशिक जी क्या आप पूछ रहे थे? द्विवेदी जी नमस्कार और सभी माननीय अतिथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। बेसिकली एक तो ये प्रभु सर का मेरे को ईमेल आईडी मिले और दूसरा बी सुरेश जी का ईमेल आईडी चाहिए मेरे को। बीरेश हाँ ये प्रभु जी ने अपना ईमेल आईडी आपको शेयर कर लिया है, माहिती अधिकार मंच @gmail.com। आप चैट बॉक्स में कृपया जाकर के देख लें। और बीरेश जी भी हमारे बीच में है तो मैं बीरेश जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना ईमेल आईडी यहाँ पर शेयर कर लें। बीरेश जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, मेरे को बहुत अच्छा लगा इस चीज के लिए कि ऑडिट रिपोर्ट जो MCD से है, जो आपकी जो अथॉरिटी होते हैं उनसे मांग सकते हैं, ताकि उनसे कुछ मेरे को फिर आगे प्रॉपर चाहिएगा, तो इसलिए मैं उनका ईमेल आईडी चाहिए था मेरे को। My email ID is rtikarnataka@gmail.com. RTI Karnataka. Karnataka. Yes, @gmail.com. S at the rate of gmail.com. at the rate gmail. Yes, gmail. कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दीजिए सर। कॉन्टैक्ट नंबर सर 944 चैट बॉक्स में डालिए 870 4693। 4693 एक साथ रिपीट कर रहा हूँ 944 870 4693। यस सर प्रभु सर का प्लीज मेरे को एक बार मिल जाए। आप पहले मुझे ईमेल से संपर्क करें, फिर मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। बिल्कुल 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 सर, आपकी बात मेरे को रेली इतनी अपील की है कि रेली मैं भी चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं गांधी जी वाली बात कही है आपने, तो मेरे को भी ये बहुत, मैं RTI के लगभग 3 वर्ष जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है ना उस तरह तड़पता था। मैं RTI डालू मैं कैसे एप्लीकेशन करनी है, मेरे को समझ में कुछ नहीं आता था उस चीज के लिए। पर तुम्हारे शिवानंद द्विवेदी जी ने ये बहुत अच्छा मंच किया है, मैं इनको बार बार धन्यवाद देता हूँ इस चीज के लिए कि ये एक चीज लेके मैं थोड़ा सा ये कहता हूं कि आप RTI एप्लीकेशन अगर स्ट्रेटेजिकली करना चाहते हैं तो पहले आप सूचना अधिकार सही ढंग से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, फिर हमारी ईमेल आईडी की भी जरूर नहीं होगी, ना वीरेश बेलूर का मोबाइल नंबर भी जरूर होगा, क्योंकि हर एक चीज के लिए अगर छोटे छोटे चीजों के लिए अगर कोई पूछता रहे तो शायद फिर तकलीफ होगी। इसलिए पहले आप पढ़िए। आपको मैं शिवानंद जी के साथ पास में मैंने सोशल ऑडिट का पैम्पलेट शेयर किया हुआ है
आरटीआई के एप्लीकेशन कैसे के फॉर्मेट्स मैंने शेयर किए हुए हैं, लेकिन उस चीज को पढ़ना चाहिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक और कुछ भी सही नहीं कह रहे हैं प्रभु सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कौशिक जी, आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, सोशल ऑडिट ही यदि आप टर्म डालेंगे गूगल में तो आपको कई सारे स्टेट्स के सोशल ऑडिट के जो फॉर्मेट हैं और उनके जो सोशल ऑडिट्स हुई हैं उसकी जानकारी और बहुत अच्छी अच्छी आ जाएगी, और आवेदन वगैरह भी। हाँ, बाकी आप ग्रुप में भी जुड़े रहे। हाँ, आरटीआई वाला ग्रुप भी है, उसमें जुड़े रहे। जी जी, हमारा मतलब ये था कि आप जुड़े रहे। जी जी जी। नहीं, बुक मेरे पास ऑलरेडी है, परंतु इसका ऑडिट का मेरे को पता नहीं था कि ऑडिट हम मांग सकते हैं, तो ये मेरे को एक अच्छी जानकारी मिली है आज। नहीं, ऑडिट बिल्कुल मांग सकते हैं। देखिए, जैसे अपने एमपी के केस में आपको बताते हैं, एक लोकल फंड ऑडिट होता है, स्थानीय निधि संपरीक्षा बोलते हैं इसको हिंदी में। स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय जो होता है, लोकल फंड ऑडिट कार्यालय, वहां से आप किसी भी संस्था के बारे में, कोई भी सरकारी संस्था है उसके विषय में आप जानकारी मांग सकते हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट मांग सकते हैं, वार्षिक अर्धवार्षिक जो भी उनकी ऑडिट रिपोर्ट होती है इस तरह से मांग सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी हमने हाल ही में पंचायतों के लोकल फंड ऑडिट हम इसमें लिखे दे रहे हैं आपके चैट बॉक्स में, लोकल फंड ऑडिट ऑफिस। ठीक है, ओके सर। तो लोकल फंड ऑडिट ऑफिस जो होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिस होती है, जो हर एक स्टेट में और हर एक जिले संभाग स्तर पे तो होनी चाहिए, क्योंकि हमारा तो संभाग है, जिले की अपन नहीं जानते, लेकिन संभाग स्तर पे ये कार्यालय है और वो लोकल फंड ऑडिट करते हैं और बहुत ही ऑथेंटिक ऑडिट एजेंसी होती है इनफैक्ट, और कैग से भी ज्यादा बेहतर इसको आप मान सकते हैं जो एजेंसी होती है। और हमने जैसे पंचायतों के विषय में कुछ ऑडिट रिपोर्ट निकलवाई है। हमारे यहाँ कराधान घोटाला हुआ था, उसमें ये बात आई थी कि क्या कराधान योजना की राशि, जो 14वें वित्त आयोग की राशि होती है, परफॉर्मेंस ग्रांट उसको बोला जाता है, क्या वो परफॉर्मेंस ग्रांट प्रॉपर लोकल फंड ऑडिट रिपोर्ट जाने के बाद उनको मिली थी अथवा नहीं, क्योंकि जो उसकी शर्त थी वह यह थी कि उनकी लोकल फंड ऑडिट होनी चाहिए। और इस विषय में हमने आरटीआई लगाई और उन 75 पंचायत की रीवा के परिप्रेक्ष्य में जो जानकारी हमने निकाली, हमने फेसबुक वगैरह में तमाम शेयर भी किया हुआ है, मीडिया में भी आया था, तो उसमें ये बात सामने आई कि वास्तव में किसी भी पंचायत ने लोकल फंड ऑडिट मतलब लोकल फंड ऑडिट तो कुछ ने करवाई थी, बहुत सारी ने तो नहीं करवाई, 80% ने तो नहीं करवाई, 20% ने जो भी करवाई, तो जो भी करवाई तो उसमें ये बात सामने आई कि उन्होंने जो टैक्सेस लगाए थे, टैक्सेशन जो किया था पंचायतों में, तो उस टैक्सेशन मतलब टैक्सेशन किया ही नहीं बेसिकली, मतलब वो नील है, सेक्टर पूरा नील है। और ऑडिट टीम ने ये आपत्ति उसमें दर्ज की कि इन्होंने करारोपण नहीं किया है, टैक्स नहीं लगाया है, इसलिए संबंधित जो पंचायत है इसकी जो क्षति हुई है टैक्स की और रेवेन्यू की जो क्षति हुई है, इसके लिए जो संबंधित सरपंच सचिव और एजेंसी है वो इसके लिए जिम्मेदार होंगी। मतलब फर्स्ट स्टेप में ही वो फेल हो गए कि उन्होंने ऑडिट मतलब उन्होंने टैक्स ही नहीं लगाया। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज की जानकारी हमें निकली आरटीआई से, हमने उसके विषय में फिर शिकायतें वगैरह की हैं और कि मतलब इसमें अब कार्यवाही की जाए, क्योंकि ये कार्यवाही रुकी हुई थी एक लंबे अरसे से। तो आप समझ सकते हैं कि लोकल फंड ऑडिट बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी होती है, और जिस तरह से वीरेश जी ने भी बताया हुआ है, और आप ऑडिट रिपोर्ट जब निकलवाएंगे तो उसमें बहुत सारे सेक्शन में वो अलग अलग आपत्तियां दर्ज करते हैं, अलग अलग आपत्तियां उनकी जो मतलब ये नहीं हुआ, इस एजेंसी ने ऐसा नहीं किया, ये बिल नहीं लगाया, वो बिल वाउचर, यहाँ पे ये कमियां प्राप्त हुई हैं, यहाँ पे ये फ्रॉड प्राप्त हुआ है, इस तरह से। और वो सारी रिपोर्ट ऐसा भी नहीं है, वो संबंधित जो मतलब जिम्मेदार जो विभाग होता है, जैसे यहाँ पर पंचायत विभाग जिम्मेदार होगा, सीईओ जिला पंचायत होगा, या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग होगा, या कलेक्टर होगा, तो उसको वो ये आपत्तियां भेजते हैं रिपोर्ट के साथ में कि साहब ये आपत्तियां हुई है और इसमें ये इनके ऊपर कार्यवाही की जाए, इनमें सुधार किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी 20-20 साल से 25-25 साल से आपत्तियों के बावजूद भी लोकल फंड ऑडिट टीम की जो रिपोर्ट और आपत्तियां होती हैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। और यदि आप ऑडिट रिपोर्ट निकलवाएंगे, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, कोई भी संस्था हो, किसी का भी जब आप ऑडिट रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें ढेर सारी आपत्तियां होंगी, और उन ढेर सारी आपत्तियों में ढेर सारा भ्रष्टाचार छिपा रहता है, और उस पर जो सक्षम विभाग होते हैं वो कोई कार्यवाही नहीं करते। मैं ज्वाइंट डायरेक्टर जो इसके लोकल फंड ऑडिट के हैं, मैंने उनसे बात करी और उन्होंने ये बात बताई कि हमने इसमें बहुत सारा आपत्तियां की हुई हैं, और आज 10 वर्षों से भी इसमें कोई कार्यवाहियां नहीं हो रही हैं। तो जिस तरह से वीरेश जी ने बताया कि इसमें आपको फिर एसीबी है, लोकायुक्त है, ईओडब्ल्यू है, ये जो भी एजेंसियां हैं सरकार के समक्ष, ऐसी एजेंसियां जो जांच करने में सक्षम है, उनके पास में जाना पड़ता है।
और फिर हम जाएंगे उसकी शिकायतें करेंगे, शिकायत के बाद वो कार्यवाही करेंगे और फिर व्यक्तिगत लड़ाई हो जाती है हमारी। मतलब जो काम सरकार को करना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है, सरकार के डिपार्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी हमारी व्यक्तिगत लड़ाई हो जाती है। जैसे वीरेश बेल्लूर जी की वो व्यक्तिगत लड़ाई अब हो गई कि वो ऑडिट रिपोर्ट निकलवाएं और बार बार वो कंप्लेन करें और कार्यवाही करवाएं। तो फिर शासन के जो ये ठेकेदार जो बैठे हुए हैं, विभाग बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? ये कार्यवाही नहीं कर रहे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये स्थिति निर्मित होती। तो मैं कभी सोच रहा था जब आप लोग डिस्कशन कर रहे थे, वीरेश जी जब ये डिस्कशन कर रहे थे और राहुल सर ने भी इस बात को कहा, तो हमें लगा कि मतलब सब काम हमें ही करना है कुल मिला करके। मतलब मुझे लगा कि बहुत अच्छी चीज है कि मतलब ये जानकारियां निकलेंगी। भ्रष्टाचार तो हमें स्वयं भी पता है कि हम एक भी ऑडिट रिपोर्ट की लगाएंगे लोकल फंड ऑडिट में तो हमें पूरा भ्रष्टाचार मिलेगा, लेकिन वो लड़ाई अंत में चल करके हमारी व्यक्तिगत हो जाएगी। तो मतलब हर चीज के लिए, तो इसके लिए हम अकेले पर्याप्त नहीं है भैया, हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम सबको आना पड़ेगा और जो भी लोग हैं हर क्षेत्र में जब वो जागरूक होंगे, ये चीज उठाएंगे, तभी इसमें कुछ हो पाएगा, वरना ये बहुत ही मतलब ये डिफिकल्ट इशू है एक्चुअली देखा जाए तो। मैं बीच में इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ कि शिवानंद जी ने जो अभी बात कही, शिवानंद जी ने जो अभी बात कही बिल्कुल सही है कि अगर आप लोकल फंड ऑडिट के या जो भी ऑडिट गवर्नमेंट के ऑडिट आप निकालेंगे वो अभी हम समझो कि हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई की जो कॉर्पोरेशन है, हर साल में आपको अजब होगा, कम से कम 50,000 ऑडिट रिमार्क रहते हैं। 50,000, आप मानिए 50,000 अगर हम ऑडिट रिमार्क्स को हम देखते बैठे तो हमारी पूरी जिंदगी चली जाएगी। और इतना भ्रष्टाचार रहता है क्योंकि बृहन मुंबई महानगर पालिका ये कम से कम अपने पूरे देश में सबसे रिचेस्ट कॉर्पोरेशन है। उसका बजट कम से कम 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का बजट है और एक कर्नाटका स्टेट का बजट, हमारा एक कॉर्पोरेशन का बजट है, कम से कम 35,000 करोड़ का बजट है। आप हर साल इतना खर्च किया जाता है, हर साल इसका टोटल डिटेल। तो अगर ऑडिट तो होती है, ऑडिट हमारे वहाँ स्टैंडिंग कमेटी ने उस ऑडिट रिपोर्ट को पास करना रहता है, यानी कंप्लायंस हो गई करके। इस साल का ऑडिट रिपोर्ट आपको स्टैंडिंग कमेटी में 3 साल के बाद में आता है। तो आप समझ लीजिएगा कि इस ऑडिट रिपोर्ट को कितना वे महत्व नहीं देते हैं। और ऑडिट रिपोर्ट पास सिर्फ 2 सेकंड में हो जाता है। यानी मेरा कहना है कि जब तक लोग इस ऑडिट रिपोर्ट्स को, सभी ऑडिट रिपोर्ट को, जितने लोगों ने अगर इस चीज को इंपॉर्टेंस देके अगर वे इसको देखेंगे, हर एक चीज का, हर एक आदमी का, अगर समझो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है तो एजुकेशन के ऑडिट देखें, रोड रिपेयर्स का है रोड रिपेयर का देखिए, और हर एक अपने को जो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं उस सब्जेक्ट का भी अगर आप करेंगे तो स्लोली पब्लिक अथॉरिटी को लगेगा कि नहीं, अभी लोग जागरूक हो गए इस ऑडिट रिपोर्ट को। हम तो अभी पूछ रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट क्यों 3 साल लगते हैं पास होने के लिए, अभी 3 साल तक कौन देखता है। तो मुझे लगता है कि मैं यही कहता हूं कि सूचना अधिकार में इतना कुछ है, हम एकदम छोटे चीजों में अटके पड़े हैं। किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी का मेरे ऊपर कार्रवाई हो गई, मेरे घर वाले को नौकरी से निकाला उस चीज के बारे में। तो मुझे लगता है कि अभी भी हम पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो इतना बड़ा क्षेत्र है, मैं जानता हूं कि ये बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन अपने से जितना होता है उतना तो हम कर सकते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि ये ऑडिट का जो वीरेश बेल्लूर जी बहुत सालों से कर रहे हैं, और मैं भी उतना डीपली मैं नहीं करता हूं, मैं इसका प्रचार करता हूं ज्यादा। तो कुछ चीजों का जो हम फिजिकल सोशल ऑडिट के ऊपर मैं महत्व देता हूं, वे गवर्नमेंट ऑडिट के ऊपर से करते हैं, कुछ लोग MNREGA का ऑडिट के ऊपर करते हैं। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट जो रहता है ना, मैं कहता हूं बहुत सही रहता है। वो बाद में ऊपर के स्तर में पास होता है नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन जूनियर ऑफिसर सभी ऑडिट्स को सभी पॉइंट आउट करते हैं और उसका कंप्लायंस लेना उनको भी मुसीबत है। आप देखिए, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हर साल में अगर 45 से 50,000 ऑडिट रिमार्क्स है, आपको लगता है यानी दिन को कम से कम 1,000 के ऊपर हो गया, 365 डेज, अगर इफ यू कैलकुलेट इट इज मोर देन 150 ऑडिट रिमार्क्स। कैसे होगा? नहीं होगा जब तक हम
हम पारदर्शिता ज्यादा नहीं पूछेंगे, ऐसे मुझे लगता है कि भास्कर प्रभु जी, आपसे एक सवाल था, आयोग की भी ऑडिटर नहीं होती है? आप आयोग का भी ऑडिट होता है, आप जरा मैंने पूछिए। मांगी सर, उन्होंने ना लिख के दिया है। होता है होना चाहिए। राजस्थान में मना कर किया, मेरे पास आई हुई है कॉपी। नहीं किया हुआ तो ऑडिट होना चाहिए। अगर आप ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट होना चाहिए, और क्या है ऑडिट करता है, एटलीस्ट महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑडिट होता है। और तो आप पूछ लीजिएगा, नहीं होता है तो करना चाहिए। नहीं होता है, मेरे पास आया हुआ है सर, मैं भी कर रहा हूँ। सर मैं कुछ दिखा रहा हूँ सर, ये देखिए सर, ये जानकारी मिली है मुझे। करवाया नहीं होगा, वो नहीं होगी जानकारी उपलब्ध, लेकिन एज पर रूल होता है। शिवानंद जी, एक मेरा निवेदन है आपसे, कहा जाए? सर चौधरी जी पूछिए। मेरा एक अपना विचार है, व्यक्तिगत विचार ये है, ये जो हम लोग मीटिंग करते हैं, इस मीटिंग में क्यों नहीं ऐसा बैंड लगा दिया जाए कि जो भी लोग बोलेंगे तो सिर्फ इंग्लिशी में बोलेंगे, हिंदी में नहीं बोलेंगे, कैसा रहेगा? नहीं, ऐसा आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अब लैंग्वेज हमारे देश के विभिन्न स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं, तो नहीं, विचार अंग्रेजी में ही रख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अंग्रेजी हिंदी सब, और जो भी दूसरी लैंग्वेज भी है जो लोग बोलना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत की राजभाषा जो है सो हिंदी है। जो भी व्यक्ति ये कर रहे हैं ना, उनको अंग्रेजी और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए कि हिंदी का क्या स्टेटस भारत में है। बल्कि यहाँ दूसरे क्षेत्रीय भाषाओं में भी लोग बोल सकते हैं, उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए। यदि मेरी मातृभाषा मैथिली है, इफ आई स्पीक इन मैथिली, इट शुड बी ट्रांसलेटेड, देयर शुड बी ट्रांसलेटर, वो प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन हिंदी तो आजकल सबको समझना चाहिए, सब लोग समझ रहे हैं, और मेरी भी मातृभाषा हिंदी नहीं है। ये इस ऑब्जेक्शन को एकदम ओवर रूल किया जाए। ठाकुर जी, हाँ हो गया ठाकुर जी। राहुल सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं कुछ कहना चाहूंगा शिवानंद सर से। जरूरी नहीं है, एक सेकंड, आप शामशेर कुमार जी थोड़ा सा वेट करिए, मैं बताता हूँ। का आर्गुमेंट है, जो जिस भाषा में कंफर्टेबल है वो उस भाषा में बात कर सकता है। अगर कोई बिल्कुल हर बात, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। आई मीन यहाँ पर कोई धन्यवाद बिल्कुल कर दे और हमको समझा दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसीलिए लैंग्वेज इज नॉट अ वार हियर, और इसमें कोई बात नहीं। हमारे बीच में गुजराती में पिछली बार बोलने के लिए आए थे, उसमें मराठी में, तो उस समय हमारे बीच में भास्कर प्रभु सर तो नहीं थे, लेकिन वो थे गांधी सर थे। तो मैंने उनको कहा कि आप मराठी में बोलिए और गांधी सर इसका जवाब देंगे। तो गांधी सर ने बढ़िया जवाब दिया था, हमें भी अच्छा लगा था। तो आप जितनी भाषा में बोल सकते हैं, बाशर्ते बस ये है कि उस भाषा को कोई समझने वाला दूसरा व्यक्ति होना चाहिए जो उनको जवाब दे सके। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ज्यादातर वैसे भी लोग यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश वाले ही जुड़ पाते हैं। और नहीं, यहाँ पे कनाडा में अगर भी जवाब किसी ने प्रश्न पूछा तो हम दो, मैं और वीरेश बिल्लूर दोनों जवाब दे देंगे। हाँ सर, बिल्कुल आप लेकिन सर मुझे लग रहा है कि कनाडा में सिर्फ आप ही दोनों लोग जुड़ ही पा रहे हैं यहाँ पे। मैंने वीरेश सर से बोला था कि अपने साथियों को और भी लाइएगा आप। अरुण कुमार शेठ है, आएंगे आस्ते आस्ते आएंगे। Yes, they will join. हाँ सर, बिल्कुल लाइए, उनको बड़ा अच्छा लगेगा और आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो अभी अगला कोई एक आध प्रश्न। हाँ बिल्कुल सर, मेरा हेलो तरुण कुमार का। सर शिवानंद सर। हाँ तरुण कुमार जी, देखिए शामशेर कुमार जी, मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ, और आप ये दिखा रहे हैं, चलिए आपका मैं इस समस्या का समाधान कर दूं। आप ये दिखा रहे हैं कि जो आरटीआई में आपके लोक सूचना अधिकारी ने जवाब दिया है वो कोरा कागज दिया है, ठीक है ना। अब आप इसका धारा 18 के तहत शिकायत एक आयोग में कर दीजिए, और ये कोरे कागज जो भी आपको मिले हैं इन सबको मतलब भेज करके और इस तरह से प्रूफ के साथ उनको बताइए, आयोग को, माननीय आयोग को ये बताइए कि ये आरटीआई कानून का उल्लंघन हुआ है और ये जानकारी इस तरह से इन्होंने भ्रमित करने के उद्देश्य से दी है, गलत जानकारी दी है और पूरा कागज दे दिया है। इस पर कार्यवाही होगी। हम मतलब आप
पहले प्रोसेस का फॉलो करेंगे, इसी के बाद कार्रवाई होगी। अब आप ये समझ लें कि हमारे इस वेबिनार में सभी समस्याओं का समाधान हो जाए तो ये मुश्किल है। हम लोगों की स्वयं की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट आयोग की स्वयं की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो अभी यहाँ पे सब नहीं हो पाएगा। आप इसमें धारा 18 की शिकायत करिए। आप ग्रुप में जुड़े हैं, आपको हम बताएंगे, फॉर्मेट भेजेंगे कि धारा 18 की शिकायत कैसे की जाती है। हमारे बीच में तरुण जी क्या पूछना चाह रहे थे? सर नहीं, मैं समझ गया आपकी बात को, मैं समझ गया। सर सेकंड अपील आई थी यूपी इंफॉर्मेशन कमीशन में, तो मैंने सर उनका 3 सेट भेजने होते हैं, 3 सेट भेजे थे। तो अभी कल मुझे वो अपील वापस आ गई है। उसमें उन्होंने क्या लिख के दिया है कि इसमें ओरिजिनल नहीं है, मतलब जो मेरे सिग्नेचर सारी सर प्रिंटेड है, जो सिग्नेचर है मैंने वो पीडीएफ क्रिएट करके जो सारा कुछ था तो वो प्रिंटेड भेज दिया था, मतलब उनको प्रिंट आउट निकाल के, ओरिजिनल साइन नहीं मारे थे। तो ऐसा है क्या सर, जब सीआईसी जब ऑनलाइन एक्सेप्ट करता है अपील, तो मैंने तो 3 सेट बना के सब कुछ बना के सिग्नेचर हैं, बस उन्होंने खाली इसलिए वापस भेज दिया कि आपने हैंड रिटन सिग्नेचर नहीं है। उस पर लिखा अपील पे ऐसे लिख दिया कि ओरिजिनल अपील नहीं है, सेकंड अपील नहीं, तो सेकंड अपील का जो आपका मेन जो कवर लेटर है, जो आप बना के भेज रहे हैं कि तीन सेट ये समस्याएं हैं, 3 सेट बनाए थे, सब कुछ सब सारे डॉक्यूमेंट्स 3 सेट पूरे बना के भेजे सर मैंने, सारे डॉक्यूमेंट्स 3 सेट में लगा के। खाली इतना हुआ सर कि जो मैंने वो प्रिंट आउट निकाला था सिग्नेचर, मैंने जो ऑनलाइन मतलब सॉफ्ट सिग्नेचर थे वही प्रिंट आउट निकाल के भेज दिया, उस पे बाद में एक ब्लू पेन से सिग्नेचर नहीं मारा बस। तो अब वो उन्होंने वापस भेज दिया वापस सर। तो इसकी सर ये क्या सही है? यदि आप ये सुनिए, यदि आपने ईमेल के माध्यम से भेजा होता नहीं तो वो जो ईमेल एड्रेस है, सुनिए बता रहा हूँ, सुनिए तो ईमेल एड्रेस जो आपका है, यदि ऐसी कोई फैसिलिटी होती, मतलब कई आयोग जैसे हमारे एमपी में स्वीकार करते हैं, सर हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ ऐसा कोई वो नहीं है, कोई बार नहीं है, आप सीधे व्हाट्सएप में ट्विटर में भी अपनी कंप्लेंट भेज दीजिए, वो एक्सेप्ट हो जा रही है क्या इस तरह से। और ट्रेजरी चालान के माध्यम से आपको पैसे देने के लिए रसीद और ये सब की आवश्यकता नहीं है, मतलब ऑनलाइन ट्रेजरी चालान से भी हो जाता है। तो हम लोगों के लिए बहुत फैसिलिटी यहाँ पर हो गई है सर के आने के बाद। अब यदि हम ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो वही हमारा सिग्नेचर माना जाएगा, क्योंकि हमारा ऑफिशियल ईमेल के माध्यम से हम भेज रहे हैं और ये स्कैन करके हमने भेज दिया है। तो अब यदि हम ईमेल से नहीं भेज रहे, हार्ड कॉपी में भेज रहे हैं, 3 कॉपी भेज रहे हैं, तो जो कॉपियां होती हैं तो कम से कम एक कॉपी में तो हमारे ओरिजिनल सिग्नेचर होने चाहिए, मतलब एक कॉपी में तो ओरिजिनल सिग्नेचर फ्रंट में तो होने चाहिए, जहां पे हम ये लिख रहे हैं कि हम ये अपील कर रहे हैं, हमारे साथ ये दस्तावेज संलग्न है, कृपया इसका अवलोकन करें और ये रिलीफ हमें दें। तो पहले पन्ने में तो हमारा सिग्नेचर होना चाहिए, मतलब मतलब सिर्फ फोटो कॉपी तो हमारे ख्याल से नहीं चल सकती, ऐसा है, क्योंकि कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। बाकी एक्सपर्ट है हमारे बीच में, हाँ सर स्वयं जवाब देंगे। आप जो भी करें सत्यापन का आवश्यक है ना, सत्यापन करना आवश्यक है। ओरिजिनल ब्लू पेन से सत्यापन होगा तभी आपकी एक्सेप्टेंस होगी कि आपने भेजा है। फोटोकॉपी कोई और करके भी भेज सकता है, इसलिए सत्यापन का एक क्लॉज दिया हुआ है और ब्लू पेन से साइन करके भेजेंगे तो ये प्रूव हो जाता है कि आप ही के द्वारा भेजी गई है, इसलिए वो वापस आई है। इसलिए आप इसको ब्लू पेन से साइन करके एक प्रश्न हो रहा है सर, एक मिनट तरुण जी इंतजार करें। हाँ सर बोलो। और उसके बाद कॉल करते हैं सुनवाई के लिए, तो एप्लीकेंट कहता है ये तो मेरा नाम तो सही है, मेरा इसमें नंबर भी सही है, लेकिन ये एप्लीकेशन हमने कभी फाइल नहीं की है, ये भी होता है। बिल्कुल, तो कैसे होगा जब आप सिग्नेचर नहीं करेंगे? सिग्नेचर, हाँ आप तरुण जी बोलिए, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी सर, एक प्रश्न हो रहा है सर, मैंने एक बच्चे आपके बच्चे आवाज कर रहे हैं पीछे से, थोड़ा उनको शांत कर लीजिए। हाँ एक मिनट सर, मेरा प्रश्न है कि मैंने जो पीआईओ को अपील आरटीआई लगाई थी, उसने मुझे उसका रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद मैंने फर्स्ट अपील अथॉरिटी को लगाई, उन्होंने भी रिप्लाई नहीं कहा मेरी अपील का। तो मैंने जो सेकंड अपील फाइल कर दी, उसका जब रिसीव हो गया आयोग में, तो उसका मैंने ईमेल कर दिया फर्स्ट अपील अथॉरिटी को और पीआईओ को। उसके बाद जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी है, उन्होंने मुझे आदेश जारी कर दिया है, उसमें उन्होंने लिख दिया कि पीआईओ को डायरेक्शन दिया कि इसको सूचना अविलंब दी जाए जिन चीजों पे आफ्टर सेकंड अपील। उसमें उन्होंने मेंशन किया कि इन्होंने फर्स्ट अपील डाली और सेकंड अपील डाली, अपने आदेश में फर्स्ट अपील अथॉरिटी ने लिख दिया है। तो सर अब उसके वो मैसेज जाने के बाद भी अब 25 दिन हो गए हैं सर, पीआईओ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है।
तो क्या मुझे अब धारा 18 की अपील भी लगानी चाहिए सर आयोग में, या खाली सेक्शन 19 की सेकंड अपील ही रहने दो सर? नहीं, अब धारा 18 क्योंकि आयोग ने ऑलरेडी आदेश दे दिए हैं, तो अब नहीं, आयोग ने दिया सर, फर्स्ट अपील अथॉरिटी ने दिया है। अच्छा, आयोग में तो अभी लंबित है। ओके, उन्होंने दे दिया। देखिए इसकी टेक्निकल दो चीजें हैं। एक तो धारा 19 में लिखा हुआ है, अगर आप टेक्निकली उसको समझे तो धारा 19 में ये लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर है उसके ऑर्डर के अगेंस्ट आप जाते हैं, आप अपील करते हैं, तो आप बेसिकली आप फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप तो फेवर में जो फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर जानकारी देने के यस सर। तो बेसिकली आप इम्प्लीमेंटेशन आप धारा 18 में भी जा सकते हैं कि ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। एक तो ये है, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि धारा 18 में जानकारी देने का प्रावधान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का खुद का नियम है। तो ये मेरा कहना है कि जाने को आप धारा 18 में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप धारा 19 में आप अपील भी करें, कोई दिक्कत नहीं, उसमें जानकारी नहीं मिल पाई है। और उसमें ये भी लिख दीजिए, आप फर्स्ट ऑफिसर को भी आपने वापस एक बार रिमाइंड तो कर ही दिया होगा। हाँ सर, वो तो मैंने उनको दोनों सेकंड अपील जब आयोग में रिसीव हो गई ना सर मेरी, जब मैंने उनको भेजा उसके बाद उन्होंने मुझे सेम डे रिप्लाई किया ईमेल से। मैं वही कह रहा हूँ, फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर को आपने एक बार रिमाइंड भी किया होगा ना कि आप जानकारी, आपके आदेश के बावजूद हमें जानकारी नहीं दी गई है। नहीं सर, अभी उनको नहीं भेजा सर मैंने। हाँ, तो आप कुछ मत करिए, उसी ईमेल पे रिवर्ट कर दीजिए फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर को टैग करके, ऑर्डर आई हैवंट गॉट द इंफॉर्मेशन, राइट। एक आप ये कर दीजिए। लेकिन सर उनसे मेरी फोन पे बात हुई थी सर उनसे, तो वो कहते हैं सर कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो खाली आदेश ही जा सकते हैं। फोन वोन छोड़ दीजिए, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। हाँ जी सर। राइटिंग में कल को डिस्प्यूट होगा, आप बोलते रहेंगे मैं 10 बार फोन किया था, आपके पास रिकॉर्ड है। आप ठीक है सर, अंडरस्टूड, धन्यवाद सर। सर मेरा एक सवाल था, ये मैंने एक यूजीसी से एक कॉलेज की रिकॉग्नाइजेशन की जानकारी मांगी, तो यूजीसी ने कहा कि ये बहुत पुराना केस है, इसकी रिकॉग्निशन की जो लेटर है वो देना संभव नहीं हो सकता, तो इसमें क्या किया जा सकता? कॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं है क्या? रिकॉग्नाइज है, यूजीसी एक वेबसाइट में अपना डालता है लिस्ट, उसमें उस कॉलेज का नाम है, लेकिन उसका लेटर मैंने यूजीसी से मांगा कि इस कॉलेज को रिकॉग्नाइज किए हैं आप, तो इसका लेटर दीजिए। तो यूजीसी बोल रहा है कि बहुत पुराना केस है, इसका उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है, इसका रिकॉग्निशन। जहाँ तक मेरा ज्ञान कहता है, एक बार रिकॉग्नाइज होने से काम नहीं चलता है, उसकी हर साल उसको देना पड़ता है, वो 2-3 साल के लिए रहता है, उसको हर साल आपको मान्यता लेनी पड़ती है, उसका ऑडिट होता है, वो संस्था आकर के देखती है। देखिए जैसे मान लीजिए आपने एक प्राइवेट कॉलेज खोला, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था रख ली, सब कुछ कर लिया, आपने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग किराए पे ले ली, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है ना, उसके आधार पर आपको मान्यता मिल गई, और उसके बाद फिर आप एक झोपड़ी में शिफ्ट हो गए, ऐसा थोड़ी ना है कि वो चलता रहेगा, मान्यता लगी रहेगी। उसके बाद फिर वापस संस्था आती है, देखती है, जो मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो आकर के देखते हैं, उसको फील्ड विजिट होता है, उसका जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है वो देखा जाता है, और उसके बाद मान्यता दी जाती है। फिर वो 2 साल 1 साल के लिए जो भी उसकी अवधि होगी उसके लिए वो एग्जिस्ट करेगा, फिर उसको रिन्यूअल प्रोसेस होता है, तो आप उसके मान्यता संबंधी जानकारी ले लीजिए, वो मिल जाएगी। तो सर मैंने उसमें ये कहा था कि मान्यता का प्रमाण पत्र जो लेटर निर्गत होता है वो दीजिए, तो कहा जा रहा है कि ये बहुत पुराना मामला है, इसका कागजात उपलब्ध नहीं है। तो हर साल होता है ना, हर 2-3 साल में वो तो ऐसा मतलब इसका क्या उपाय किया जा सकता? उपाय ये है कि मेरा कहना है कि एक तो वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, पहले ये देख लीजिए। हाँ चल रहा है, वो दिख रहा। कॉलेज बंद हो गया? कॉलेज चल रहा है, उसमें पढ़ रहे हैं छात्र। बस तो ठीक है, तो उसका रिकॉग्निशन का वो अभी जो मान्यता मिली है, लेटेस्ट मान्यता आप पता कर लीजिए ऑफिस में कि लेटेस्ट मान्यता कब मिली है, वो तो ऑफिस में आपको बता देंगे, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है वहां से आपको मालूम पड़ जाएगा। ये तो उनकी वेबसाइट पे भी होना चाहिए, वेबसाइट पे सारे प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट भी होती है, किसको कब मान्यता मिली है।
इसकी मान्यता वो pending है। वो वेबसाइट पे भी मैंने देखा तो नहीं था सर। तो पूछ लीजिए कि ये मान्यता प्राप्त है, इसको कब मिला है। एक आरटीआई ये लगाइए नहीं, कि वो यूजीसी ने कहा कि मान्यता प्राप्त है, लेकिन वो जो लेटर रिकॉग्निशन का वो उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। देखिए गलत जानकारी दी उन्होंने। आप टेक्निकली आप खुद समझ रहे हैं, आप उनके जवाब को बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप टेक्निकली समझिए उस चीज को कि एक बार जो शुरुआत में कोई संस्था सन 70 में खुली होगी, तो 70 में एक बार रिकॉग्निशन मिला, तो 70 की रिकॉग्निशन अभी तक थोड़ी ना चल रही होगी। उसके बाद संस्था बढ़ती है, 10 के 15 कमरे होते हैं, 25 कमरे होते हैं, फिर नए सिरे से उसमें रिकॉग्निशन होता है, नए सिरे से उसका सत्यापन होता है। ये सब होता है, ये हर 2-3 साल में होता है, नियम के तहत होते हैं। उसके नियम को पता करिए और उसमें जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट है, आप लेटेस्ट रिपोर्ट की कॉपी मांगिए। तो सर मैंने इसमें अपील भी की, तो अपील में भी वही लिख दिया गया, कॉपी पेस्ट कर दिया गया, नहीं दिया गया जानकारी। नहीं तो उसमें आप पता करिए ना उसमें कि कब उसमें कब सत्यापन हुआ था। सत्यापन की जानकारी मांगी। हाँ तो हाँ आप ये मांगिए कि इनका वेरिफिकेशन होता है और इनकी मान्यता संबंधी जानकारी मांगिए कि इन्होंने आप ये मांगिए कि इस कॉलेज द्वारा यूजीसी में मान्यता संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, है ना जी, पिछले 3 साल में वो मुझे कराए जाए। सर मुझे लगता है कि AK सिंह जी कितना भी बेहतर ढंग से मांगेंगे, इनका लोक सूचना अधिकारी बार बार वही जवाब देगा। वो 3 साल में ये तो डिपेंड भी करता है कि मतलब लोक सूचना अधिकारी जानकारी देना चाहता है कि नहीं। सर मैं कुछ कहना चाह रहा था। शिवानंद जी मैं बोल सकता हूँ इस विषय पे? राहुल सब कुछ बोल रहे हैं, नवीन जी थोड़ा सा राहुल सर कंप्लीट करें। नवीन जी बोलिए। धन्यवाद राहुल सर। सर मेरी जानकारी है कि कुछ जो कॉलेजेस होते हैं उनको एक परमानेंट एफिलिएशन भी होता है, मतलब उनको बार बार एफिलिएशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो जानकारी तो उनके पास रहनी चाहिए, लेकिन ये हो सकता है कि यूजीसी ने उनको एफिलिएशन ना दिया हो, यूनिवर्सिटी जो संबंधित यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो उनसे भी वो मांगी जा सकती है। 12B में एफिलिएशन मिलता है कॉलेज को यूजीसी से? वो जो 21B जो रहता है ना वो यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएशन मिलता है। उसमें सेक्शन एक उनको परमानेंट एफिलिएशन जो रहता है ना यूजीसी नहीं देती, यूनिवर्सिटी देती है। तो यूनिवर्सिटी से ले लीजिए आप। हाँ, और ये देखिए कि हो सकता है वो कॉलेज यदि एडेड कॉलेज है तो आपको डायरेक्ट कॉलेज से भी आप मांग सकते हैं। जी सर। और एक ये जानना था सर, CIC के जो हैं वो इंग्लिश में ऑर्डर पास करते हैं, सारा प्रकरण हिंदी में चला, आवेदन हिंदी में हुआ, प्रथम अपील हिंदी में, और CIC में भी अपील हिंदी में गया, जब ऑर्डर आती है तो इंग्लिश में आती है, तो इसमें दिक्कत हो जाता है। तो इसमें क्या किया जा सकता है? ये क्वेश्चन आप अगली बार के लिए जब हमारे पूर्व मुख्य यहाँ पे जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सुरेश गांधी जी, तो वो आपको इसमें गाइड करेंगे। सर मैंने वो अपील में लिखा भी था कि आयुक्त महोदय से निवेदन है कि हिंदी में ऑर्डर पास करें ताकि हमको समझने में सुविधा हो, उसके बावजूद इंग्लिश में ऑर्डर पास करते हैं। हाँ, क्योंकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में काम पूरा इंग्लिश में होता है, अंग्रेजी में किया जाता है। क्योंकि समस्या ये है ना कि अन्य प्रांतों में भी उसको समझना है। भाई वो ऑर्डर तमिलनाडु भी जाता है, कर्नाटका भी जाता है, मणिपुर भी जाता है, तो सब लोग समझ सके इसीलिए उसका प्रावधान। लेकिन आपके मामले में वो करना चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए कि सर अभी एक बिमल जुल्का जी का कोई ऑर्डर शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, और वो हिंदी में था। अभी किसने शेयर किया था? व्हाट्सएप ग्रुप RTI वाले किया था, वो मुख्य सूचना आयुक्त का ऑर्डर। हाँ तो हाँ, तो बिमल जुल्का जी ने कैसे दे दिया था वो हिंदी? नहीं, वो वही मैं कह रहा हूँ कि वो प्रावधान है उसमें, ऐसा नहीं कि प्रावधान नहीं है, प्रावधान है। ऑर्डर को लेकर के बहुत स्पष्ट वो है। थोड़ा सा हेलो हेलो हाँ सुभाषिष जी। हाँ सर, बस मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे MPSIC भोपाल का ऑफिस है, अब इसमें हमने कोई एप्लीकेशन लगाई, तो हम इसका स्टेटस कैसे जान सकते हैं बिना वहाँ ऑफिस में फिजिकली जाए?
बिकॉज जो लैंडलाइन नंबर दिए रहते हैं उनकी तरफ से जो भी पत्र आता है वो उसमें जनरली वो उठाते नहीं इसलिए या मतलब उठाते भी हैं तो वो जानकारी दे नहीं पाते। और ईमेल आईडी के थ्रू मैंने अगर ईमेल किया तो ईमेल के थ्रू जवाब देते नहीं जो भी स्टेटस है। तो बिना फिजिकली जाए कौन सी हेल्पलाइन नंबर है, कौन सा फोन नंबर है जिससे हमको जानकारी मिल सके? पता नहीं, अगर आपका जो जिस डिवीजन को मैं देखता हूँ, रीवा, सिंगरौली, सतना, सीधी, अगर उससे इंदौर सर, इंदौर। ये तो मैं अपने डिवीजन की बात कर सकता हूँ। मेरे डिवीजन में मैंने अपनी एक व्यवस्था रखी है, मैंने एक नंबर दिया हुआ है और उस नंबर पर कोई भी कांटेक्ट करता है तो उसको उसका जो भी अपील नंबर है उसका स्टेटस क्या है वो बता दिया जाता है। अब बाकी सब जो है वो कायदे से ये सारी चीज़ें वेबसाइट पर होनी चाहिए। मेरा मानना है कि इवन जो सेकंड अपील है उसकी फाइल करने की व्यवस्था भी वेबसाइट पर हो। और ये चूंकि मेरा विषय नहीं है, इसको मुख्य सूचना आयोग से देखते हैं, तो आप उनसे सर ये मामला चूंकि उठा है, ये मामला चूंकि उठा है तो थोड़ा सा इसमें अपडेट शायद थोड़ी बहुत जानकारी यदि हो आपके पास तो हमें लगता है कि 6 माह पहले ये जब तनखा जी ने ये मुद्दा उठाया था, काफी पेपर वेपरबाजी भी हुई थी उस समय और पोर्टल लॉन्च होने की बात आई थी कि 1 महीने के अंदर पोर्टल लॉन्च हो जाएगा और ये ई फाइलिंग की व्यवस्था हो जाएगी। तो फिर इसमें क्या कोई डेवलपमेंट हुआ, कोई जानकारी है क्या अपडेट इसमें? देखिए, जो लॉन्च तो हो गया है, अब लॉन्च हो गया लेकिन वो आधा अधूरा टाइप का हुआ है। तो जो बेसिकली अगर आप उसको कंपेयर करें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की वेबसाइट से, कोर्ट्स तो वहीं से, क्योंकि मैंने खुद अरेंज किए थे कोर्ट। मैं श्री विमल जुल्का जी से मिला था और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था और उस वेबसाइट के कोड्स लेकर के मैंने मध्य प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन को उपलब्ध कराए। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अभी तक जहाँ तक मैंने स्टेटस देखा है वेबसाइट का, तो वो जो होना चाहिए, मेरा ये कहना है कि पूरी की पूरी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। एक तो कोरोना काल है, किसी को आयोग आने की जरूरत ना पड़े, वो सिर्फ वेबसाइट पर देखें कि भाई उन्होंने जो केस डाला है, या वेबसाइट पर ही वो अपना सेकंड अपील फाइल कर सके। जो ये एक पुराना एक बाबा आदम के ज़माने की कार्रवाई चल रही कि 3 सेट में दिया जाए और ये दिया जाए, ये सब बंद होना चाहिए। और सिर्फ एक बार अपना कॉपी उस पर वो अपलोड करें, उसी ऑनलाइन उस पर वो फीस जमा करें और वहीं पर उसका स्टेटस रजिस्ट्रेशन नंबर उसको मिल जाए और उसके बाद जब अपील लगे तो उसको ऑटोमेटिकली उसको वेबसाइट के थ्रू नोटिफिकेशन उसको मिल जाए। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड इसमें होना चाहिए। और ये जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में हो चुका है और यहाँ हम एग्जैक्टली वही कोड ला चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अब इसमें जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको खुद इस मुद्दे को, और जिन लोगों की जवाबदेही है इसमें कार्रवाई करने की, उनके साथ उनसे मिल करके आग्रह करना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि भाई इसको उपलब्ध कराएं, चालू रूप से व्यवस्था सुनिश्चित करें। जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। जी, हमें लगता है कि सामान्य आवेदक तो सिर्फ जो बड़े बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट प्रदेश और देश में जो बैठे हुए हैं उनका मुंह ताक रहे हैं कि शायद वो कुछ करें। बड़ी बड़ी ये संस्थाएं हैं आरटीआई के नाम पर, और मीडिया भी है शायद मुद्दे को उठाए, या बड़े ऐसे नेतागण हैं जो बातों को एक स्तर पर रखें तो वो सुना जाए। सामान्य आवेदक इसमें क्या कर पाएगा? वो तो बेचारा अपना हल्ला गुल्ला थोड़ा बहुत करेगा, पर ये मैं कहूंगा कि आप लोग जो एमपी से हैं वो पत्राचार अवश्य कर सकते हैं और ईमेल करें। ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं कि सामान्य नागरिक नहीं करता। आप देखिए, आप डालिए 100-150 एप्लीकेशन लगाइए, उसमें एक एक करके सब इंडिविजुअल अगर ठान ले कि हमें कहीं की व्यवस्था ठीक करनी है, आप एक कॉपी जनरेट करिए, एक कॉपी उसकी जाएगी सीसी वो सीएम साहब को जाएगी, एक कॉपी राज्यपाल को जाएगी, एक कॉपी सीआईसी साहब को जाएगी। जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो कॉपी जाएगी और उसमें आप उनसे कहिए कि भाई ये व्यवस्था इसको लागू कराया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का नियम भी है, सुप्रीम कोर्ट का नियम है। ऑनलाइन करना कोई ये मतलब कोई एहसान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की का नियम है। इसमें पीआईएल चल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए, और ये उसका उल्लंघन कर रहे हैं और ये हर राज्य में हो रहा है।
तो मेरा कहना है कि कोऑर्डिनेटेड देवेंद्र, हाँ, तो ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के रूप में आप सब लोगों को मिल करके इसमें इंडिविजुअल एक एक करके, और सिर्फ एक लेटर से काम नहीं चलेगा। आई मीन आप उसमें जितने आपके समाज में जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो सब अपने अपने स्तर पर एक एक चिट्ठी भेजें। और आप लोग समझते हैं कि भाई मेरे एक लेटर भेजने से क्या होगा, ऐसा नहीं है। गोविंदेश्वरी जी हो गए, M.A. कादरी जी हो गए, जब वो बिहार से लिखेंगे यहाँ पर CM हाउस उनकी चिट्ठी जाएगी, तो भाई वहाँ जो बाबू बैठा है, बाबू मतलब IAS ऑफिसर, मैं उनको बाबू ही बोलता हूँ, तो वो जो बाबू बैठा है वो उस पर लिखेगा, बड़े बाबू होते हैं ना वो, तो वो उसको करना पड़ेगा, कलम चलानी पड़ेगी उसको, कॉपी नीचे तक जाएगी, तो वो इससे बनता है, उसका दबाव रहता है। और जनता जब सामने रहती है तो भाई पॉलिटिशियंस को भी लगता है कि ठीक है, ये जनता की तरफ से बहुत ज्यादा इसको लेकर के प्रेशर आ रहा है, हमें इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। देवेंद्र अग्रवाल जी, ये आपके छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ में क्या आपका है ई-फाइलिंग का सिस्टम? सर 2 साल पहले मैंने आवेदन लगा के पूछा था, तो उस समय उन्होंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसमें काम किया जा रहा है। फिर उसके बाद दोबारा लगाया तो उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के पास लेटर आ गया था आयोग से, और उन्होंने आयोग ने NI चीफ के पास भेज दिया था, जो NIC है उनके पास। लेकिन अभी तक ये जो प्रवासी लीगल वाला जो मामला जो सुप्रीम कोर्ट में था, जिसके बाद 27 राज्यों में ई-फाइलिंग की बात शुरू हुई थी, उस पर अभी काम नहीं हुआ है। सिर्फ यही बोला जा रहा है कि इसको बनाया जा रहा है, प्रोसीजर में है, और बहुत जल्दी इसको ट्रायल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया जाएगा। ऐसा है, ये सब देवेंद्र अग्रवाल जी आपको ही मालूम है। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आप कोई कंपनी चला रहे हो, और यही कोई प्राइवेट संस्था होती 1 महीने के अंदर वेबसाइट खड़ी हो गई होती है। लेकिन चूंकि सरकारी तामझाम है, काम है, तो वो उस गति से चल रहा है। दिक्कत यही है। ठीक बोल रहे हैं सर आप। देवेंद्र अग्रवाल जी, इस पे एक फॉर्मेट आप तैयार करिए, और ऐसा फॉर्मेट तैयार करिए जिसमें बहुत कम मॉडिफिकेशंस हो, मतलब वो किसी भी SIC को भेजा जा सके। क्या उस फॉर्मेट में इतना कुछ हो कि कुछ सर इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ऑलरेडी 2018 में प्रवासी लीगल करके एक संस्था है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये प्रकरण लाया था, जिसके बाद 27 राज्यों को नोटिस हुआ था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पूछा था कि आपने इस पर क्या काम किया है। उस समय तक सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली में ही ये लागू थी व्यवस्था, और मेरा कहना है उसके बाद ही सब जगह पे अभी उसी संस्था को ये करना चाहिए कि एक तो कंटेंट लगाए कोर्ट में जाकर के, या कोई और दूसरा उसमें पार्टी बने, कंटेंट लगाए कोर्ट में जाकर के, और कहे कि भाई एक तो कोरोना काल है, तो कोरोना में आप क्या चाहते हैं कि मतलब ज्यादा से ज्यादा जनता जो है वो काउंटर पे खड़े होकर के आवेदन देते रहे, भीड़ लगाए वहां पे, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो स्थिति यही है कि मतलब इन्हें इसको थोड़ा सा जनहित में भी इसको तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये ऐसा क्या ऑर्डर रिडंडेंट हो जाता है। अगर 3 साल पहले ऑर्डर दिया था, 4 साल पहले ऑर्डर दिया था, तो ये हरीकत अनंता चली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देता है, उसके बाद आप भाई अभी उसमें फिर वापस उसको काउंटर करना चाहिए जाकर के, और उसी आधार पर लीगल नोटिस सर्व करना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि सभी सरकारों को लीगल नोटिस सर्व करना चाहिए कि आप बताइए कि इसमें कंटेंट के लिए हम लोग क्यों ना आपके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जाए, उनसे बात करिए। देवेंद्र जी, सबको ये आइडिया हो गया है कि हम लोग इस मामले पर आगे कोई बेहतर काम नहीं करेंगे, इसीलिए उनको कोई डर या खौफ नहीं है। नहीं करेंगे। वो संस्था की जो आप बात कर रहे हैं, जो भी उन्होंने इनको नोटिस भिजवाई थी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, आप 27 स्टेट्स की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा प्रकाश में लाइए, और इस विषय में गांधी सर से भी चर्चा करते हैं, और एक फॉर्मेट अपन हिंदी और इंग्लिश में इसको तैयार करते हैं और इसको भेजेंगे। शिवानंद जी, इसका कलकत्ता वाले के केस नंबर वगैरह भिजवाइए, डालें चैट बॉक्स वगैरह में, देवेंद्र जी कहिए, जिससे मैं राजस्थान में इसको PIL में ला सकता हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं इसमें ऑलरेडी चला हुआ है सर, ऑर्डर हो रखा है। मैंने अभी एक ऑर्डर जो 436 जो अपने अदली भारद्वाज जी ने लगाया था, उसके लिए मैंने लिख के भेजा था कोर्ट में, तो कोर्ट ने ये कहा था, कोर्ट ने कहा था कि वही आ सकती है। कई बार कोर्ट ये आदेश करती है
ये करते कि भाई जो पार्टी रहती है वही आ सकता है। हाँ। सर ये मैं अभी कर चुका हूँ रिसेंटली। हाँ नहीं तो मेरा यही निवेदन था, हम लगा देंगे। मैं चीजों में इसमें थोड़ा सा मेरा खुद भी इंटरेस्ट लेता रहता हूँ, क्योंकि ये होना चाहिए, जनता के लिए सहूलियत का विषय है। और मैंने बीच में अभी परसों ही मेरी सामान्य प्रशासन विभाग में एक अधिकारी से बात हुई। मैंने पूछा कि भाई ये ऑनलाइन की क्या अभी तक क्या चल रहा है, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि हमें इसमें जवाब भी फाइल करना पड़ रहा है। ये सब तो बहुत, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी है और उसमें जवाब फाइल करना पड़ रहा है। लेकिन क्या है कि अगर आप उसको देखें कि 3 साल में क्या किया है, तो वो बस एक खाका खींच दिया है, खाना पूर्ति हो रही है बस। ये राजस्थान ने वो कहने के नाम पर जब आप बोलोगे इम्प्लीमेंट क्या किया, तो हाँ साहब एक वेबसाइट है। अरे वेबसाइट होने से क्या होता है, आप उसको पूरा फुल्ली फंक्शनल कब होगा? ऐसा तो नहीं होगा 10 साल बाद फुल्ली फंक्शनल होगा। इसमें राजस्थान सरकार ने ऑर्डर जरूर कर दिया है ऑनलाइन के लिए, पर आयोग में बात करते हैं तो बोलते हैं हमारे पास बजट नहीं है। उनकी तो वेबसाइट वैसे भी क्लैप्स है। आप देखें राजस्थान की वेबसाइट, राहुल सिंह जी आपसे क्या छुपा हुआ होगा कि एक बार राजस्थान की वेबसाइट पे थोड़ा नजर डालें, क्या हालत है राजस्थान। देखिए ऐसा है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और किसी भी कमीशन को बजट बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम बजट होता है। मतलब सरकार का जो हजारों करोड़ का बजट होता है, तो कमीशन का बजट मात्र 3-4 करोड़ 5 करोड़ 7-8 करोड़ से ऊपर का रहता है। राइट। वो आधा से आधा, मतलब 60-70% सैलरी में खर्च हो जाता है। अब रही बात ये जो वेबसाइट के लिए जो खर्चा है ये सब है, तो वो एनआईसी के पास जाता है। एनआईसी जो है, आपको मालूम होना चाहिए एनआईसी काम कैसे करता है। एनआईसी अगर वो स्टेट का जो आईटी डिपार्टमेंट होता है, वो गवर्नमेंट वो करेगा, वो कमीशन से पैसा लेगा वेबसाइट पर, लेकिन एनआईसी पैसा नहीं लेगा। एनआईसी के रूल्स में ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो आयोग और ये सब होता है उससे चार्ज नहीं लेंगे, लेकिन वो उसकी बिलिंग सेंटर को करेगा। तो उसमें एनआईसी को करना है, इसमें ना बजट का वैसा कोई खर्चा। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, करना राज्य सरकार को है इम्प्लीमेंट। एक्चुअली क्या है कि कोई भी राज्य सरकार आरटीआई कानून को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है सुरेंद्र जैन जी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, राज्य सरकारों को इम्प्लीमेंट करना है। राज्य सरकारों ने अपना कागजी घोड़ा दौड़ा दिया अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कि उन्होंने ये कर दिया है। अब आयोग के पास बात जाती है, आयोग के पास 4-5 करोड़ का बजट है जो भी है आसपास। अब आयोग के पास जब बजट नहीं है तो वो क्या करेगा, सीधी सी बात है। तो राज्य सरकार को यहाँ पर ये करना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार यदि चाहती, मतलब कोई करना चाहता है तब तो बजट अलॉट कर देती और निर्देशित मतलब कर देती, जो भी है मतलब जिस तरह से काम करना है तो हो जाता। कोई इतना बड़ा काम तो है नहीं। और अभी इसमें मंशा की, मैं अभी रिसेंटली सीआईसी साहब, मतलब हमारे राजस्थान के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से मिलकर आया। वेबसाइट के लिए मैंने काफी कहा, तो उसको बुलाया प्रोग्रामर को, तो उससे कहा उसने, तो वो मेरे ऊपर गर्म हो गई। मतलब गलती आयोग की कार्यप्रणाली की है, सुधारने के लिए सीआईसी ने बुला के मेरे सामने कहा कि भाई ये जैन साहब लेके आए हैं, ये कमियां हैं आपकी वेबसाइट की, इसको सुधारो। तो ये उल्टा हम काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर ही गर्म हो रहे हैं। मतलब हमारे को उल्टा गलत समझ रहे हैं कि ये हमारे को परेशान करने आते हैं लोग। ये हालत है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश काम करना पड़ेगा, तो वो वही समझ उनको, उनकी आदत हो गई है बैठे हुए तनख्वाह लेने की। और अब हम परेशान कर ही रहे हैं वैसे कार्य करवाने के लिए। सर ये जब तक अब आप अपनी बात बता रहे हैं और सही कह रहे हैं आप जैन जी। और बोलिए शिवानंद जी। हाँ जी बोलिए, आप पूरा करिए। मैं यही कह रहा था, जब तक आयोग की कार्यप्रणाली हमारे जैसे राजस्थान जैसे और भी होगी सभी जगह, ये नहीं सुधरेगी, तब तक सूचनाएं दूसरे डिपार्टमेंट से नहीं मिल सकती है। सर मैं बार बार यही कह रहा हूँ, हालत यही है। आप जैसे हजारों में एक है। राहुल सिंह जी की मैं हर जगह जाता हूँ, तारीफ करता हूँ, मैं बोलता भी हूँ राजस्थान सूचना आयोग में भी अधिकारियों को, कमिश्नर्स को बोलता हूँ, मिलता हूँ सभी से। तो मैंने कहा उनसे कुछ सीखे, आप देखें वो कैसे जजमेंट कर रहे हैं और हमारे जजमेंट देखेंगे आप। और उनको पढ़ाता हूँ जजमेंटों को लेके। अभी मैं इसीलिए लड़ने के लिए गया। मतलब ऐसे ऐसे जजमेंट आ रहे हैं जो मतलब 9C के जैसे जजमेंट है। एक सीआईसी साइन कर देते हैं
एक सलाहकार उनका जजमेंट लिखा रहा है। ये अभी मैंने आक्षेप लगाया है सूचना आयोग पे कि आपके यहाँ सलाहकार ये ऑर्डर लिख रहे हैं, उसमें आप साइन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या शिवानंद जी, मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों से जुड़ के और ज्यादा सबल मिलता है हमारे को। मैं पिछले 10 सालों से यही लगा हुआ हूँ आयोग की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए। तो ये सुधरेगी तो आयोग की बिल्कुल सुरेंद्र जैन जी, आपने बहुत सही बात कही है, लेकिन वो समय के लिए आप सोचिए जब कोई व्यक्ति, हम आप आम नागरिक अपने पैसे, अपने खर्च से, अपनी स्पिरिट से आयोग में कुछ करना चाह रहे हैं, हम जाएं, आप जाएं, आपके पास खाली टाइम है, आपको लगे कि चलो चलते हैं और थोड़ा सा आयोग में मदद कर देते हैं, आयोग की कुछ फाइलें इधर उधर कर देते हैं और कुछ जानकारियां इस तरह से अपन मतलब कंपाइल करके मदद कर देते हैं आयोग की। उस पर भी जो सरकार है या जो सिस्टम है वो यदि ना काम करने दे हमको, आपको, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? वो तो छोड़िए कि वो बजट अलाउ करेंगे कि अलग बात है, नहीं करेंगे अलग बात है, वो तो दूर की बात है। यहाँ मध्य प्रदेश में अब ये स्थिति निर्मित हो रही है कि हमारी जो भी ऑनलाइन सुनवाइयां हैं, जो भी ये सारी चीजें हैं, हम इसको देख पा रहे हैं। मतलब कोरोना टाइम में जो पॉजिटिव है, मतलब कोरोना के टाइम में इसको पॉजिटिविटी के तौर पे आप देख सकते हैं कि हम सब ऑनलाइन कर पा रहे हैं। वो सब बंद हो रहा है। यहाँ पे नोटिसें जारी हो रही है, सरकार नोटिस जारी करवा रही है आयोग पर दबाव दे करके कि ये सब वॉलंटियर्स का काम बंद होना चाहिए, ये सब ऑनलाइन सुनवाइयां बंद होनी चाहिए। हर एक सूचना आयुक्त मतलब कंटेंट्स रहे, वो अपने में ही रहे और वो कुछ ना करे, मतलब जो कुछ करना चाह रहे हैं उसको कुछ ना करने के लिए दबाव दिया जा रहा है। इसको आप क्या कहेंगे? अब क्या कहें सर, इसमें ये समस्या है तो यहाँ पे आपके यहाँ वो चल तो रही है, हमारे यहाँ तो ये समझ लागू ही नहीं हुआ ना। यहाँ पे तो सुनवाई का हुआ ही नहीं, और नहीं जाते हो तो निर्णय गलत हो जाते हैं। बस आप जाओ हाईकोर्ट, ये इसके लिए क्या ठीक है। राहुल सिंह सर का हमें लगता है काफी टाइम हो गया है और वो कुछ दूसरे भी इम्पोर्टेंट काम से लीव करना चाह रहे हैं और हमें लगता है कि हमारा भी ये मीटिंग काफी लंबा खिंच गया है और ये लगभग 2 बज गए हैं। इसके साथ ही हम ये मीटिंग अब यहाँ पर इसको फिनिश करते हैं और अगले संडे को अपन फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप सभी रजत कुमार जी क्या बोल रहे हैं आप? हेलो, कोई कुछ पूछना चाह रहा था क्या अभी लास्ट में? जी हम पूछना चाह रहे थे हाँ कद्री जी बताइए। हम ये एक जानना चाह रहे हैं सर कि एक हम आरटीआई लगाए थे, 2 सब्जेक्ट है उसकी छाया प्रति के लिए उत्तर पुस्तिका का बोर्ड में, तो हमें सूचना नहीं मिली। सूचना नहीं मिलने के बाद हम प्रथम अपील, द्वितीय अपील किए, सुनवाई हुआ। सुनवाई के बाद 12,500 करके आर्थिक दंड लग गया। आर्थिक दंड तो लग गया सर और उसके बाद से डिस्पोजल कर दिया गया, लेकिन सूचना हमको नहीं मिला। तो इसको क्या करना चाहिए? हमें लगता है कि कादरी जी ये बात आपने पहले भी एक बार रेज किया था, इशू हमें अच्छी तरह याद है। नहीं। और हाँ कंप्लायंस की बात आई थी। अच्छा वो दूसरा होगा, फिर वो दूसरा होगा, वहाँ भी कंप्लायंस का इशू था शायद। ऐसा 2 मरतबा हुआ कंप्लायंस का। ये कंप्लायंस नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, कंप्लायंस नहीं होते हैं। हमारा अगला कोई डिस्कशन एक सिर्फ इसी टॉपिक पे रहेगा, कंप्लायंस को लेकर के। जो सूचना आयोग के आदेश होते हैं उनका कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है और आम जनता को परेशान होना पड़ता है। इनफैक्ट हमारे ही कई सारे आरटीआई के मामले हैं, मतलब परसेंटेज तो कम है, जो आयोग के निर्णय के बाद भी जानकारियां नहीं मिली हैं या जुर्माना लगने के बाद भी। तो फिर उसमें एक तरीका होता है कि आप धारा 18 की शिकायत करेंगे, 16(1)(f) के अंतर्गत आप उसकी शिकायत करेंगे और आयोग के समक्ष बोलेंगे कि आपके आदेश के बावजूद भी हमें संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है, और फिर वो उसमें एक्शन लेंगे। अब आप यूपी से ठहरे तब आप वहाँ पे देखेंगे कि अभी वहाँ आयोग कैसे काम कर रहा है। धारा 18 की शिकायत को बिहार से तो बिहार में अभी आयोग कैसे काम कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। यदि वहाँ पे पता चला कि आपको 1 साल और धारा 18 की शिकायत पे कार्यवाही के लिए इंतजार करना पड़ेगा, हाँ, तो ये एक मेजर इशू है। तो ये सब प्रॉब्लम के विषय हैं। कंप्लायंस तो एक हमेशा ही एक बर्निंग इशू है, इस पे अपन डिस्कस करेंगे, हमेशा चलता रहता है। ठीक है, शुक्रिया। और फिर इसके बाद एक और भी आपके पास तरीका बचता है। यदि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए ही और आदेश के बाद भी आपको नहीं मिल पा रही है, तो फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट ही उसका फिर अंतिम रेफ्यूज होता है, मतलब कोर्ट जाएंगे। पर ठीक,
जी सर, जयपाल सिंह बोल रहा हूँ सर। एक हेलो। था मेरा। हाँ जयपाल सिंह जी बताएं। जी सर, मेरा ये था श्रीमान जी कि मैंने एक ITI लगाई तहसील में ITI लगाई कि पंजी नामांतरण पंजी होती है, वो एक विशेष टाइम के लिए मांगी, कुछ दिनांक के लिए, जिसमें 10-12 पंजी थी 12। तो तहसीलदार ने ये हेड जो कह के ये मना कर दिया कि ये जानकारी जो आपको देने लायक नहीं है, ये जानकारी आपको नहीं दी जा सकती। तो क्योंकि उस जानकारी में भ्रष्टाचार छुपा हुआ था, इसलिए सर उसमें क्या किया जाए, मेरा ये कहना है। नहीं, नामांतरण पंजी छुपाने का कोई औचित्य नहीं है और ऐसी कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं है। ये तो पब्लिक पोर्टल पे वास्तव में रखी जानी चाहिए। और जिस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से आप हमारे MP में जाइए, MP भू अभिलेख आपको तो पता ही है, आप राजगढ़ से हैं। MP भू अभिलेख में आप जाइए और वहां पर किसी भी हल्के की जानकारी, किसी भी व्यक्ति की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। नामांतरण किसकी कौन सी जमीन है, रकबा है, हम जान सकते हैं। तो नामांतरण पंजी में ऐसी कौन सी जानकारी है, हाँ, ये सेक्शन 8 या 9 के अंतर्गत नहीं देने योग्य है, हाँ, ये गलत है। उसकी आपको अपील ही करनी पड़ेगी। वो देना नहीं चाह रहा था इसलिए नहीं दिया, अपील पे जाएंगे आप, और क्या तरीका है। उसमें क्या है, ये ऐसा कर रखा, मतलब पटवारी और सभी ने मिलकर जो है जो रजिस्ट्री हुई नहीं, उसकी नाम कंप्यूटर में संशोधन करके नामांतरण पंजी फर्जी बना के, और जिसमें 4 लाख रुपए प्रति बीघा की जो जमीन थी उसको सिर्फ वाले करके और राजस्व का नुकसान किया गया, उसके बारे में जानकारी निकाली गई थी। इसीलिए वो जानकारी इसीलिए वो जानकारी नहीं दे रहा है, क्योंकि जान रहा है कि हम इसमें निपट जाएंगे, इसलिए वो जानकारी नहीं दे रहा है। अब आप इसको जब आयोग में जाएंगे, संभवतः आपका प्रथम अपीलीय अधिकारी भी जानकारी दिला पाएगी नहीं, बहुत डाउटफुल है। अब इसमें जब आप आयोग में जाएंगे, अपील करेंगे, तो आयोग आपको इसमें एक्शन लेगा और तब आपकी ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मतलब ऐसे फर्जीवाड़ा हुआ है, वहां पे अपने प्रूफ के तौर पे आयोग के समक्ष ये बात आपको रखनी पड़ेगी और वहीं से इसका निराकरण होगा। जी जैसे अक्सर होता है। अरुण कुमार सेठी जी बताइए। सर मैं कह रहा था कि ये जो प्रकरण है मेरा राज्य सूचना आयोग में ACN पर है। हेलो, ACN सो कॉज नोटिस जारी किया हुआ है। हाँ, ACN पर है। तो सर इसमें क्या होगा, अब इसमें कितना समय लगेगा, कुछ है क्या जानकारी? नहीं, सो कॉज नोटिस जब SCN जारी करते हैं उसका एक सर्टेन आप लाउड स्पीकर में है तो हमारी आवाज रिटर्न हो रही है। आप कान में लगा लेते ज्यादा, हाँ, माइक्रोफोन पे लगा ले जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें जब एक सर्टेन ऐसा रहता है कि SCN उन्होंने जारी किया, उन्होंने ये कहा संबंधित लोक सूचना अधिकारी को या प्रथम अपीलीय अधिकारी को अथवा डीम्ड PIO जो भी है कि आप इतने दिन के अंदर, मतलब आपके ऊपर क्यों ना कोई कार्रवाई की जाए, जुर्माना लगाया जाए अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, 20-1-20 कोई ऐसी कार्रवाई की जाए, इस तरह से उसमें मतलब उनका वो होता है। तो उसका ड्यूरेशन रहता है और ये रहता है कि 1 महीने बाद या इस तिथि को इसकी सुनवाई होगी। SCN ऐसे इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं होता है। तो SCN में क्या लिखा है आप बताइए। नहीं, ACN में उनको बुलाया था वहां पर नगर परिषद। हाँ, तो बुलाया था, तो बुलाने के बाद क्या किया? क्या किया बुलाने के बाद? परिषद ने वहां लिखित में दे दिया कि ये हमारी नस्ती उपलब्ध नहीं है रिकॉर्ड में। जो जानकारी मैंने मांगी है वो उपलब्ध नहीं है रिकॉर्ड में। और क्या वो उपलब्ध होनी चाहिए? वो मतलब पब्लिक रिकॉर्ड है, होना चाहिए ना वो। हाँ, वो होना चाहिए सर, नामांतरण से संबंधित है, लेकिन उन्होंने वहां लिखित में दे दिया कि इसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। नहीं, तो यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो रिकॉर्ड चुरा लिया गया, नष्ट कर दिया गया, अथवा विभाग का ऐसा कोई सिस्टम है जो 10 साल 15 साल 20 साल पुराना रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली नष्ट कर दिया जाता है। यदि उनके पास ऐसा कोई प्रूफ है कि ये रिकॉर्ड 2012 में ही नामांकन ये रिकॉर्ड, हाँ, तो 2012 में नामांतरण हुआ है और नहीं ज्यादा पुराना है कि नहीं है वो एक दूसरा इशू है। एक प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है कि कुछ रिकॉर्ड से एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद, मतलब मान लीजिए 10 साल पहले के रिकॉर्ड हैं तो वो नष्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसका ओवर बर्डन होता जाता है और संबंधित विभाग को समस्याएं होती हैं।
तो ये नष्ट होने का, तो यदि उनके पास ऐसा कोई नष्ट करने का है तब तो ठीक है। अरे यदि ऐसा नहीं है कि वो नष्ट छुड़वा करने लिया क्या गया है? या किसी को, हाँ, तो यदि वो उसको क्या है, फर्जी तरीके से रीजनरेट कर नामांकन, सकते हैं। हाँ, तो जी, फर्जी तरीके से नामांतरण किया हुआ है और फाइल गायब कर दी इन लोगों ने, फाइल को इन्होंने गायब कर दिया है। उस पे कार्रवाई हो जाएगी, उसमें आप उनके ऊपर FIR दर्ज करवाने की मांग करिए। अच्छा, और आयोग भी इनफैक्ट इसमें कर सकता है। हाँ, आयोग पहले फैसला दे, उसके बाद ही अपन करेंगे ना। हाँ, तो आयोग क्या फैसला भी दिया नहीं क्या सुनवाई के बाद? अभी नहीं दिया। 28 सर मैं ARTI के बारे में पूछना चाहता कि आप अनुमति देते हुए भी फिलहाल। हेलो, हाँ, एक मिनट गोगोरिया जी, थोड़ा सा इंतजार करिए। 28/1 में सुनवाई हुई थी, अभी जनवरी में। इसके बाद अभी कोई सूचना मेरे पास नहीं आई है। नहीं तो आप पता करिए, सूचना आनी चाहिए आपके पास। आप एक बार वहाँ पर पत्राचार करके के बारे में पूछना था। जानकारी मांग लीजिए। जी जी जी, धन्यवाद। आप उनसे पत्राचार करें। ओके। हाँ, गोगोरिया जी बताइए। हेलो NM गोगोरिया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या पूछना चाह रहे थे आप? सर हाँ, बोलिए। अब हम फिर इसको फिनिश भी करें मीटिंग को, आप लोगों के प्रश्न के कारण ही रुक गए हैं। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये मेरी पास आवाज नहीं। मैं यही पूछता सर, एक कार्ड के बारे में पूछता कि मैंने वित्त विभाग में कार्ड गई थी और 1 साल बाद में वो सूचना दे हैं, तो मैं उनकी आगे की कार्रवाई कहाँ करूँ और क्या करूँ? विधि विभाग में आपने RTI लगाई थी और उन्होंने 1 साल बाद भी सूचना नहीं दी। अभी फिलहाल पास में भेजी है सर, 1 के बाद में उन्होंने, और वो भी आप सूचना दे दी है आपको? हाँ, घर भेजिए सर वो। तो जो जानकारी भेजी है उससे आप संतुष्ट नहीं है? उससे संतुष्ट नहीं है आप? सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, तो यदि कितना समय हो गया आपको RTI लगाए हुए? इनको जानकारी भेजे हुए कितना समय, RTI लगाए हुए कितना समय आपको हुआ है? 1 साल से अधिक हो गया उसको। तो मुझे लगता है कि इसमें अब प्रथम अपील का कोई वो नहीं बचता है, क्योंकि 30 डेज जब पूरा हो जाए उसके अगले 30 डेज के अंदर, मतलब टोटल 60 डेज के अंदर, आवेदन देने के टोटल 60 डेज के अंदर आपको प्रथम अपील कर देनी चाहिए। तो हमें लगता है कि इसमें प्रथम अपील का तो कोई आधार विशेष बनता नहीं है। हाँ, प्रथम अपील वहां पर जो भी आपका विधिक, हाँ मिल सकता है, उसके आधार पर कर सकते हैं। कोविड का आधार वो भी लेंगे, कोविड का आधार ये भी ले सकते हैं डेफिनेटली। हाँ, बस यही है, कोविड का आधार, कोविड का आधार आप ले सकते हैं। सही कह रहे हैं देवेंद्र जी, आप कोविड का आधार ले करके और ये बोल करके कि आपने जानकारी स्वयं ही लेट दी है, इसलिए मेरी ये प्रथम अपील है। प्रथम अपीली अधिकारी का पता उन्होंने लिखा होगा ना आपके उसमें पत्र में कि प्रथम, यदि आप इस जानकारी से संतुष्ट नहीं है, अभी तक वैसे मतलब कोई जानकारी कोई नहीं मिली आपको? या सर डायरेक्ट आर्टिकल अंदर स्टेट इन्फॉर्मेशन में तो भेजते हैं ना। आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछ जाता हूँ कि क्या आर्टिकल RTI का जो आ रहा है उसके तहत में ये अपील कर सकते क्या सीधे? हाँ, 19(1) के तहत आप अपील कर सकते हैं, 19(1) के तहत आप अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील आप कर सकते हैं प्रथम अपीली अधिकारी को, यदि उन्होंने प्रथम अपीली अधिकारी का नाम पता भेजा है तब। यदि नहीं भेजा है तो आप प्रथम अपीली अधिकारी और केयर ऑफ लोक सूचना अधिकारी, और जहां पर आपने RTI लगाया था वहीं पर भेज सकते हैं। ये भी मतलब एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, और गांधी सर और जो भी हमारे मार्गदर्शक है उन्होंने बताया है कि यदि कभी भी आपको लोक सूचना अधिकारी संबंधित प्रथम अपीली अधिकारी का नाम पता नहीं बताता है तो आप
आवेदन स्वयं लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में भेज सकते हैं, और उसमें हेड में टॉप में आप इस तरह से लिखिए कि प्रथम अपीली अधिकारी केयर ऑफ लोक सूचना अधिकारी, और जो लोक सूचना अधिकारी का पता हो वो आप लिखिए, और उसमें आप अंत में नोट भी लगा दीजिए कि आपने धारा 782, 783 आदि का जो भी उल्लंघन किया है, आपने प्रथम अपीली अधिकारी का नाम पता नहीं। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम आप इस बात को रखिएगा। हमें लगता है कि हमारा डिस्कशन काफी लंबा किया। सुरेंद्र जैन जी और कुछ ऐड करना चाह रहे हैं क्या? नहीं सर लीव है ना। हमें तो लगता है कि अपन 2:15 बजा दिए हैं और लगभग 3.25 घंटे। हम अगले संडे को फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। हाँ गोविंद जी, क्या गोविंद जी क्या बोला आपने? बोला है ना अपन को आवेदन लगाने के लिए, देवेंद्र जी को आप बोल रहे थे, उसको करेंगे, उसको करेंगे देवेंद्र जी। उसको फॉर्मेट एक अपनी तरफ से भी तैयार करेंगे। सुरेंद्र जी भी हैं, सुरेंद्र जी भी थोड़ा होमवर्क इसमें करेंगे, और हम सब मिल करके एक ऐसा जनरल फॉर्मेट तैयार करते हैं जिसमें इनसे मार्क करते हैं उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कि मतलब इसका कंप्लायंस किया जाना था लेकिन आज तक हुआ नहीं है। और हम ज्यादा से ज्यादा लोग उनको ईमेल के माध्यम से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा उनको भेजेंगे। और अपने क्षेत्र में जो भी मीडिया है, मीडिया का भी सहयोग लेंगे। और आप लोग यदि फेसबुक ट्विटर में सभी लोग जुड़े हुए हैं तो वहां भी जो भी सूचना आयोग हैं और सरकारें हैं उनको टैग करके ज्यादा से ज्यादा मैसेज करेंगे कि हमें मतलब ये इस तरह से चाहिए हर स्टेट से में एक करना चाहिए। हम लोग करेंगे इसको निश्चित तौर पर। अगले हफ्ते के पहले अपन इस पर कोई ना कोई कंक्लूजन पे निकले आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी, हाँ कद्री जी बिल्कुल, हाँ देवेंद्र जी, नवीन अग्रवाल जी, हाँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे